وعند اللقاء يعود الأحبة. السلام علیکم. تو بھائی کیسے ہیں؟ فٹ فاٹ ہیں آپ؟ خوش باش ہیں؟ رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں تو نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور سنائیں آج کل کیا چل رہا ہے. سحری کر رہے ہیں، افطاری خوب مزے لے رہے ہیں. تو یار یہی دن ہے، نیکیاں کما لیں، سحری وغیرہ کر لیں. تو یار میں نے لاسٹ ڈے جو ہے افطاری بلاگ بنایا تھا، تو اس پہ جو ہے ماشاءاللہ بہت اچھا پیار مجھے ملا، کافی اچھے کومنٹس آئے، کافی انسٹاگرام پہ مجھے اچھی جو ہے ریچ آؤٹ ملی. تو میں نے سوچا کہ یار سحری بلاگ بھی بنایا جائے. تو پھر آج میرا ارادہ تھا کہ ہم سحری بلاگ بنائیں گے. تو ہمارا سحری کا بیسکلی یوں سین ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا اختر شمسی صاحب ہیں، ان کے توسط سے ہم جو ہے 500 بندوں کو ڈیلی جو ہے سحری کرواتے ہیں اور انہی کے ساتھ جو ہے پھر سحری کا جو ہے آغاز کرتے ہیں. پہلے ان 500 بندوں کو سحری کھلائی جاتی ہے، اس کے بعد جو ہے خود سحری کی جاتی ہے. تو میں نے سوچا کہ یار آج اس چیز کو بھی ریکارڈ کیا جائے. تو اس چیز کو ریکارڈ کی ہے، وہ جو ہے آپ کو تھوڑا سا آگے مل جائے گی. اس سے پہلے میں نے سوچا کہ تھوڑا سا انٹرو دے دیا جائے. تو اس کی لوکیشن بھی جو ہے آپ کو ویڈیو میں دے دی جائے گی. تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. تو اس جگہ پر پہنچ گئے جس کا ذکر جو ہے میں نے آپ سے کیا تھا. یہاں فری سحری کا آغاز کروایا جاتا ہے. السلام علیکم شمسی صاحب. الحمدللہ. اور یہ احمد بھائی السلام علیکم. کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہے. شمسی صاحب کا ہم تھوڑا سا انٹرویو کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں جو ہے رمضان کے 30 دن جو ہے یا جتنے بھی روزے ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے، تو ان کی جو ہے فری سحری کروائی جاتی ہے. اور جدھر جو ہے کھانا وغیرہ کھانے کا وسیع انتظام ہوتا ہے، اور کھانے کے ساتھ ٹیک اوے دیا جاتا ہے، یہاں بیٹھ کے نہیں کھلایا جاتا. تو اس کا بھی پوچھتے ہیں کہ کیا سین ہے، اور اس کے علاوہ بقایا جو ڈیٹیلز ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں. لیکن اس کی سب سے پہلے میں آپ کو لوکیشن بتاتا ہوں. یہ خانپور میں ہے، سٹی پارک کے ساتھ ہی ایک جگہ ہے. اس کی بھی ڈیٹیل جو ہے ہم لیتے ہیں، تو میں آپ کو آگے بتاتا ہوں. جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ادھر جو ہے وسیع جو ہے کھانے کا انتظام ہوتا ہے، جس میں روٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں. اور یہ جو ہے پھر ٹائم کے ساتھ جو ہے انکریز ہوتی رہتی ہیں. یہ ساتھ لائیو جو ہے تندور چل رہا ہوتا ہے. اور شمس صاحب آج کیا پکایا آپ نے؟ جی ہم نے دال بنا رہے ہیں. چلیں جی ماشاء اللہ. اور یہ ساتھ ہی جو ہے روٹیاں پکائی جاتی ہیں. شمسی صاحب نے ہاتھوں سے ماشاء اللہ بناتے ہیں جی. بس جی کوشش کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھا ہو، اور وہ چیز بنائی جائے جو ہم اپنے گھر کے لیے، یعنی میرے گھر میں یا آپ کے گھر میں ایسی ترتیب سے صاف ستھرے طریقے سے بنائی جائے. تو اس حوالے سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھا کھانا دیا جائے. بہت معتبر ہیں اور بہت ہی عظیم لوگ ہیں جو جناب سیدہ کے دسترخوان پہ آتے ہیں اور یہاں سے کھانا لے کے جاتے ہیں. اور جو بی بی کے مہمان ہیں تو ان کے لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھے کھانا بنایا جائے اور ان کی خدمت میں پیش کیا شمسی جائے. صاحب یہ آپ کو آئیڈیا کیسے آیا تھا اس چیز کو اسٹارٹ کرنے کا؟ یہ یقیناً میں پچھلے سال جب یہ کرونا آیا تو تھوڑا سا ادھر آ جائیں، وہ ایسے آواز ہوا شور ہو رہا کہ ہے. لوگوں کی جو حالت تھی اور لوگ بھوک افلاس ہاں کی. جی ادھر آ جائیں. اچھا، تو لوگوں کی جو قوت برداشت تھی، قوت خرید تھی، اس کی جو وہ شکت تھی وہ بہت کم تھی. تو پھر میں نے اور میرے ایک دوست نے کوشش کی کہ ہم لوگوں کے لیے کیا بہتر کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ مالک کی کریمی ہوئی، اس کی کرم نوازی سے ہم نے اسٹارٹ کیا. فری تندور پاکستان میں پہلا فری تندور تھا دسترخوان جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے. تو یہ ہم نے آغاز کر دیا. پھر کچھ مجبوریاں تھیں میرے دوست کی، تو وہ 6ویں 7ویں روزے مجھے چھوڑ کے چلا گیا. تو پھر میں اکیلا ہو گیا. تو پھر میں نے کہا اکیلا نہیں ہے تو، یہ سفر جاری رکھ اور یہ کرتا رہے. بالکل. الحمدللہ میں نے وہ سفر کو جاری رکھا. 30 کے 30 روزے وہ عزت کے ساتھ اختتام پذیر ہوئے. ابھی یہ جو سال ہے، اس سال الحمدللہ میں نے اور میرے خاص کر میں اپنے بچوں سے، اپنے بیٹوں سے، اپنی بیٹیوں سے مشورہ ضرور کرتا ہوں. تو ان سے جب میں نے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا جی یقیناً ہونا چاہیے. پھر میرے جو دوست ہیں ہم خیال، جو میرے اپنے دوست ہیں، میرے ذاتی دوست ہیں، پھر میں نے ان سے مشورہ کیا، ان سے بات چیت کی. انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ ہمت کریں، اللہ بہتری کرے گا. تو پھر ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرتے ہوئے نعرہ لگا دیا اور یہ کام شروع ہو گیا.
गया, और ये इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा ये चलता रहेगा जब तक सांसें हैं, जब तक जान में जान है, जब तक हिम्मत है, और जब तक खालिक ने चाहना है। बीबी का ये दस्तरखान है, बीबी जाने और उसके मामलात जाने। बुनियादी तौर पे ये मैं आपको दिल की बात करूं, मैं मलंग सा बंदा हूँ, दरवेश सा आदमी हूँ। आप बैठ जाएं, तशरीफ़ रखें, कोई मसला नहीं है, इजी होके कर लें। हाँ जी। हाँ, मेरी ये कोशिश होती है, और मैं हमेशा इस कोशिश पे रहा हूँ कि लोगों के लिए कुछ ना कुछ बेहतर करूँ। और मैं कौन हूँ किसी के लिए खाने का इंतज़ाम करने वाला? मेरी कोई वक़्त नहीं है। मैंने खाना जो है वो देना है, और इंशाल्लाह जब तक मेरी सांसें हैं ये खाना लोगों के लिए हमेशा जारी व सारी रहेगा। और मेरी कोई वक़्त नहीं है, मेरी कोई औकात नहीं है। उसका दिया हुआ है, उसी का है, मुझे मिलता है, मैं दे देता हूँ। सुभान अल्लाह। मैं ईमान से कहता हूँ, रखता नहीं हूँ, मुझे मेरे पास आता है, जैसे आता है मैं वैसे उसी के नाम पे दे देता हूँ। और ये सिलसिला इंशाल्लाह जारी व सारी रहेगा। और मैं आपको बताऊँ कि दुनिया के जितने भी लोग हैं ये फलाही काम कर रहे हैं, वो अकेला बंदा नहीं कर सकता। अकेले बंदे के बस की बात ही नहीं होती। लोग मिलते हैं, दोस्त मिलते हैं, उनके तामुन से मामला जो है वो आगे चलते हैं, और ये इंशाल्लाह ये सिलसिला चलता रहेगा। अच्छा शमसी साहब, मैं कुछ क्वेश्चंस हैं। जब आपने स्टार्ट किया था तो आपको क्या मुश्किलात फेस करनी पड़ी थी स्टार्ट में? देखिए जी, जब भी कोई आप छोटा सा या बड़ा काम करने जाते हैं तो उसमें मुश्किलात तो होते हैं। सबसे बड़ा मुश्किल जो है वो आपके लिए फाइनेंस होता है, आपके लिए पैसे का होना होता है। बिल्कुल। पहली बात तो ये। उसके बाद ये है कि आपके पास पैसे के बाद उसके बाद आपके साथ हम ख्याल दोस्तों का होना, एक टीम का होना। एक देखें, रात भर जागना, बिल्कुल। ये कोई मजाक नहीं है कि मेरे बच्चे अफ्तारी के बाद खाना यानी दस्तरखाने जनाब सैयदा के खाने बनाने के लिए अपने हाथ से सैयदादियाँ जो हैं, औलाद सैयदा जो हैं हुसैन अलैहिस्सलाम की, जो ये नौकरानी हैं, ये बेटियाँ हैं आले रसूल की, ये अपने हाथ से मुख्तलिफ़ एशिया चीज़ें यानी सब्ज़ी काटना ये वो एहतमाम करती। तो सारी रात मेरे छोटे छोटे, मेरा आले मोहम्मद भी छोटा, वो भी जाग रहा होता है उस वक्त तक, सुबह सादिक तक, नमाज फजर के बाद फिर ये तमाम वाइंड अप करने के बाद नमाज सुबह होती है, नमाज सुबह के बाद दुआ होती है, दुआ के बाद कलाम मजीद फुरकान हमीद की तिलावत होती है। और मेरे घर के सारे बच्चे और मेरे घर के लोग सब बैठ के अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह साईं आज का दिन तूने इज़्ज़त के साथ जो है वो और बड़े भरम के साथ जो है आज का ये इख्तिताम हुआ। और सुभान अल्लाह। अच्छा एक और बात, ये आपने यहाँ बैठ कर यानी नहीं खाने देते, आप टेक अवे यानी देते हैं, यानी जो बच्चा या लोग घर लेकर जाएं, तो इसका क्या यानी? इसके भाई एक ही रीज़न है ना, हाँ जी। यहाँ एक फर्द आएगा तो एक खा के जाएगा ना, यहाँ से लेके जाएगा तो वो जो छोटा बच्चा रात का सोया हुआ है वो सुबह उठ के भी खा लेगा। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि यहाँ से खाना लेके जाने का मकसद ये है कि वो बच्चियाँ, वो बेटियाँ, वो मस्तूरें, वो बीमार जो अफोर्ड नहीं कर सकते या उनके पास रोज़ा रखने की सकत नहीं है, यहाँ एक सिंगल बंदा आएगा तो एक खा के जाएगा। यहाँ से जो लेके जाएगा तो यकीनन वो मस्तूरें भी खाएंगी, वो घर के सारे फर्द खाएंगे। तो एक फर्द वाहिद के लिए नहीं है, पूरे घराने के लिए लंगर है ये। अगर मेरा बस चले, मेरी अगर मेरे बस में हो तो मैं इस शहर के कोने कोने में, इस मुल्क के कोने कोने में तंदूर लगवा दूँ लोगों की। दुनिया में सरकार अली अपने अबी तालिब अलैहिस्सलाम का फरमान है, मौला फरमाते हैं कि दुनिया में सबसे मुश्किल वक्त ये है कि जब बंदा गरीब होता है तो गुर्बत में बंदा अपने शहर में भी अजनबी हो जाता है। तो यहाँ इस शहर में इतनी, अब जिस जगह पे मैं बैठा हूँ, जिस जगह पे मेरा घर है, ये सारा का सारा वो एरिया है जहाँ लोगों की ज़ाती जगह नहीं है। यहाँ लोगों के लिए अपना ज़ाती घर की जगह नहीं है। जिस बंदे का अपना ज़ाती घर नहीं है तो वो गरीब तो है ही ना। तो उसको भूख, देखिए भूख जो है दुनिया का, जिस मज़हब में बंदा चला जाए, लेकिन भूख का एक मज़हब है, भूख का जो मज़हब है वो एक है। इसी तरह मैं आपको ये कहता हूँ कि हिंदू को, मुस्लिम को, ईसाई को, सिख को, यहूदी को, सबको भूख लगती है। तो ये भूख जो है ये
मालिक का निज़ाम है रिस्क का देना और बांटना। अगर अल्लाह ने लोगों को रिस्क दे दिया है, लोगों को इतना रिस्क वसी अता कर दिया है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी तिजोरियाँ भरें। उसका ये मतलब नहीं है कि आपके बच्चे जो हैं वो शाम को सहरी और अफ्तारी के लिए अफ्तारी के लिए और सुबह सहरी के लिए आला तरीन खाने खाएं और आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं अल्लाह के मखलूक है वो भूखी है। नहीं, तकसीम करें, इसे बांटें। मैं ये वसूख से कहता हूँ, दिल से कहता हूँ, आप बांट के तो देखें, मौला की कसम, मुझे आप बांट के देखें, आपको पता चलेगा कि ये लुत्फ क्या है। सुभान आप लोगों को खिला के देखें। मैं कहता हूँ आप एक को खिलाएंगे, अल्लाह आपके 10 को खिला दे। अल्लाह की कसम है, मैं दिल से कह रहा हूँ, अगर आप अल्लाह की राह पे 10 रुपए खर्च करते, ये हदीस मुबारक भी है, 1 का 10 देता है, यानी अगर आप 10 खर्च करते हैं तो आपको 100 मिलेगा। और वो कहाँ से मिलेगा? वो बेनियाज है, वो मालिक है, वो खालिक है, वो यकता है, उसके वसी खजाने हैं, वो रिस्क देने वाला है और वो रिस्क बांटने वाला है। जो समंदर की तह में, पहाड़ों की तह में मखलूक यानी छोटे छोटे कीड़ों को रिस्क देता है, तो वो अपने बंदों को भी देता है। बस उसका ये करम है, उसका ये फैज़ है, उसकी ये इनायत है कि मुझ जैसे गुनाहगार बंदे को उसने चुन लिया और मुझे सही रास्ते पे लगा दिया। मैं बुनियादी तौर पे, मैं खुद गरीब आदमी हूँ, मुझे पता है भूख क्या होती है। बिल्कुल, मुझे पता है एक बच्चा जब माँ से खाना मांगता है तो घर ना हो तो माँ की क्या कैफियत होती है। मैं ये सब कैफियत जानता हूँ, मुझे पता है भूख क्या है, अफलास क्या है, दर्द क्या है, तकलीफ क्या है। जब आपके घर में कोई बंदा बीमार होता है तो आपके पास मेडिसिन लेने के लिए दवाई नहीं होती, पैसे नहीं होते, तो उस वक्त घर के सरबराह की क्या कैफियत है, तो वो मैं जानता हूँ। भूख का पता ही भाई उसको होता है जो हो, उस बंदे को कभी आगा भूख का पता हो ही नहीं सकता, उस तकलीफ का दर्द हो ही नहीं सकता जो कभी भूखा ना रहा। और ये रमज़ान मुबारक अल्लाह ने दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा पैमाना रखा है। कहा है कि उसे बंदे के भूखे रहने से कुछ नहीं होता। सही, सारा दिन बंदा भूखा रहे, अल्लाह को क्या फायदा हो सकता है? अल्लाह ने बंदे को भूखा ही इसलिए रखा है, प्यासा ही इसलिए रखा है कि जो साहिब सरवत लोग हैं वो भूखे रह के उनको पता चले कि ये भूख है क्या, ये प्यास है क्या। यानी अल्लाह बंदे को रोजे का सवाब तो दे रहा है, लेकिन भूखा रख के ये पैगाम दे रहा है बंदे को कि तुम जो भूखे हो, तुम जो प्यासे हो, तुम भूख और प्यास के दर्द से गुजरे हो, तो याद रखो तुम्हारे इर्द गिर्द जो भूखे हैं, तुम तो 1 महीना भूखे रहे हो और भूखा रहे, सुबह भी और शाम को भी हजारों नेमतें मैंने तुझे दी हैं, उसके बावजूद भी तुम्हें प्यास और भूख का इल्म है। तो जो बंदा सारी जिंदगी भूख और अफलास में खड़ा है, दर्द और तकलीफ में खड़ा है, और जिसने सारी जिंदगी बीमारी और मुफलिसी में गुजारी है, तो तुम भूखे रह के भूख के दर्द से वाकिफ हो, तो फिर अपने इर्द गिर्द भूखे लोगों का ख्याल रखो, उन लोगों का ख्याल रखो जो लोग वाकई मुस्तहिक हैं, वो लोग उन लोगों का ख्याल रखें जो लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। मैं आपके इस चैनल को तवज्जो से आपकी इस बावकार बद में खाना तैयार होना शुरू हो गया, बस चंद मिनट के बाद हमने खाना तकसीम। अच्छा शमसी साहब, एक और बात, आपने बताया कि आपने कोरोना की सूरत हाल को देखते हुए इस लंगर का आगाज़ किया है, तो इस लंगर का मुस्तकबिल यानी आपने इसे मुस्तकबिल में भी रखना है या बस ये कोरोना के हालात में? देखिए मेरी बात को सुने, जी, हमने बिस्मिल्लाह कर दिया है। अब मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मेरा आले मोहम्मद भी मेरे साथ होता है, बिल्कुल, तो मेरे बच्चे मेरे साथ होते हैं। मैं अपने बच्चों को बता रहा हूँ, बल्कि अपने बच्चों को सिखा रहा हूँ कि कुछ हो जाए, आप जितने आला मनसब पे चले जाएं, आपने लोगों का ख्याल रखना है, लोगों की ख्याल रखना है। ये सिलसिला जारी। देखें, कोई भी बड़ा काम किसी फर्द वाहिद का मोहताज नहीं होता। फर्द जो है उस बड़े काम के मोहताज होते हैं। बड़ा काम जो है वो किसी का मोहताज नहीं होता। अगर मैं नहीं करूँगा तो कोई और अल्लाह का बंदा आके कर देगा। लेकिन जब तक मेरी सांसें हैं, मैं अपनी औलाद से भी, अपने बेटों से भी यही कहता हूँ, अपने
चाहने वालों से भी यही कहता हूँ कि जहाँ तक मुमकिन हो सके जितनी सांसें हैं, वो देखिए मेरा बेटा ऊपर करके खाना बनवा रहे हैं हुसैन, तो ये इंशाअल्लाह जब तक सांसें हैं ये चलता रहेगा। आपने ये एक सवाल किया कि यहाँ बिठा कर क्यों नहीं खिलाते। एक और बात यह है कि SOPs के हवाले से भी हम मजबूर हैं। यहाँ भी अगर लोग बैठ के खा के घर लेके जाएं तो मैं हाजिर हूँ, लेकिन यहाँ फिर वक्त थोड़ा होता है। यहाँ जो बंदा खाएगा तो फिर घर लेके जाएगा तो वो रोज़ा किस तरह रखेगा। बिल्कुल ये कैफियत भी है। चैनल फेसबुक वो मौला सबकी सुनता है, वो मौला सबकी सुनता है, वो मौला सबकी सुनता है, वो मौला सबकी सुनता है। रहीम, ये दुब्बा मई सभा महल्ला अजीम शाह का इलाका है। यहाँ आप देख रहे हैं कि फरीद सहरी का एहतमाम जनाब अख्तर हुसैन शमसी साहब ने किया है। ये सहरी का के लिए रोटियाँ और सालन मुफ्त तकसीम किया जा रहा है। तो मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के बाशिंदे और लोग लेने के लिए आए हैं। तो इस सिलसिले में मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि जो खानपुर के दीगर मुखय्यर हजरात हैं, जिन बहुत से हैं, जिनमें सियासी लोग भी हैं, समाजी लोग भी हैं, जनाब मोहतरम शेख फ़याज़ुद्दीन साहब, हाजी अरशद जवेद साहब और हाजी सलीम भुल्लर साहब, ख्वाजा बशीर साहब, ख्वाजा आतिफ साहब और दीगर जो है ना, उनको भी तकलीद करनी चाहिए और अपने अपने इलाकों में जहाँ पर वो महसूस करें, देखें कि यहाँ के लोग ज़रा कस्मा पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और वो माली तौर पर मुस्तहकम नहीं है, तो इस तरह का एहतमाम करना चाहिए ताकि नेकियां कमा सकें। फरीद सहरी का एहतमाम दीगर लोगों को भी करना चाहिए। मैं अख्तर शमसी साहब की इस काविश को खराज तहसीन पेश करता हूँ और दुआ गो कि अल्लाह ताला उनकी इस काविश को कबूल फरमाए। थैंक यू। दुआ करवाएं। जब्बार सत्तार मुतकब्बिर ज़ुल जलाल इकराम करीम अल्लाह शहर के तमाम लोगों के वफा को बरकत अता फरमा दे। करीम अल्लाह मोहम्मद व अहले बैत अलैहिस्सलाम द वास्ते इस मुल्क के चमन फरमा दे। मोहम्मद व आले मोहम्मद द वास्ते मालिक तमाम मकातिब फ़िक्र को इत्तफाक को बरकत अता फरमा। मोहम्मद व अहले बैत अलैहिस्सलाम दी इज़्ज़त और तौक़ीर द वास्ते करीम अल्लाह जिन्हें दोस्तें में फ़कीर दी ज़िंदगी लाके मालिक हुसैन दी इज़्ज़त द वास्ते उन्हें दे दुआ कबूल फरमा। मालिक जो बे औलाद है उन्हें औलाद अता फरमा। मालिक जो बेरोज़गार है उन्हें रोज़गार अता फरमा। मालिक आले मोहम्मद दी इज़्ज़त और तौक़ीर द वास्ते मेरे साकिब रज़ा ज़रदारी साहब के बच्चे की ज़िंदगी दराज फरमा। मेरे मुशर्रफ खान के बेटे को तकलीफ़ है, मालिक आले मोहम्मद द वास्ते उन्हें को सेहत कामला अता फरमा। मेरे इजाज़ खान सजाद खान के बख्त बुलंद फरमा। मोहम्मद आले मोहम्मद की इज़्ज़त द वास्ते मेरे भाई दिलावर खान के बख्त बुलंद फरमा। मेरे हबीबुल्लाह ख्याल असद हबीब को कामयाब अल्लाह आले मोहम्मद की इज़्ज़त द वास्ते मेरे हबीबुल्लाह ख्याल के बेटे असद हबीब दा मालिक आले मोहम्मद की इज़्ज़त द वास्ते बख्त बुलंद फरमा। मोहम्मद आले मोहम्मद द वास्ते मेरे साथ भाई दे बख्त बुलंद फरमा। मेरे समी खान दे बख्त बुलंद फरमा। मेरे समीउल्लाह माल दी ज़िंदगी दराज फरमा। मोहम्मद आले मोहम्मद की इज़्ज़त द वास्ते मेरे भाई आफ्ताब दे बख्त बुलंद फरमा। मेरे डॉक्टर फ़िदाउर रहमान दे डॉक्टर हमजा दे बख्त बुलंद फरमा। मोहम्मद आले मोहम्मद की इज़्ज़त और तौक़ीर द वास्ते मेरी सारी संगत को आबाद फरमा। मालिक कहीं मेरे दोस्त को कहीं कमी ने द मोहताज न कर, तमाम दे बख्त बुलंद फरमा। इस दुआ को इज़्ज़त अता फरमा। इस दुआ को उन्हें दुआ में शामिल फरमा जिन्हें तू फ़ौरन कबूल करेगी। मालिक की दुआ को रद्द न फरमा। अब आप 5 बंदे नहीं मानी जो 5
فنز میں. اچھا